How are you? You all, and good morning to everyone. Clear? I'm Vishnu Gupta and I'm teaching biology here. We are I think it will be my third or fourth lecture in this subject. Please write down in the comment box, are you enjoying the subject or not? Okay, because and this thumbnail I have written that the biology is not a subject, it is more than the subject. Clear? Biology is a subject to not only study but to implement in your life also. Whatever things we see, like as in the present scenario, you are observing that coronavirus. Okay, and all the health workers, those are working, they have studied biology. So somewhere now at this time you can see the engineering is not helping, but the medical is helping. Okay, so biology is not a subject, it is more than a subject. So please enjoy the subject. Okay, gear up, energy बढ़ाइए, ठीक है, and let's study the biology in the for the class 10th. Let's see what are the today's topic. Every day I start the topic with a very motivational quote so that you will be energetic. आप energetic feel करिए और उसी energy के साथ आगे बढ़िए, ठीक है, उसी आगे बढ़ने को ही लेके thought है, ठीक है. See the secret of getting ahead. अगर आपको आगे बढ़ना है, तो लोगों को रहता है ना कि हम आगे बढ़ें. अच्छा ये बताओ कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो ये नहीं चाहता कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो, ठीक है. कोई ऐसा हो गया नहीं जो ऐसा चाहे ना, ठीक है. मतलब एवरी वन वॉन्ट टू गो अहेड. सब लोग आगे जाना चाहते हैं, आगे पहुंचना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट नो बडी इज़ गोइंग टू स्टार्ट. लेकिन कोई स्टार्ट नहीं कर रहा है, ठीक है. जैसे आपको पता लगा होगा कि विष्णु सर इज़ टीचिंग बायोलॉजी, लेकिन फिर भी सोच रहे होगे अरे अभी तो लॉकडाउन है, पढ़ लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ठीक है. बट यू आर लॉजिंग योर अपॉर्चुनिटी. आप अपनी अपॉर्चुनिटी को खो रहे हो. दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्टडी एट योर होम एंड टू गेट द क्लासेस बाई मी, ठीक है. और मैं आपको यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ जिससे आप एंजॉय भी कर रहे हो. जस्ट एंजॉय दिस सब्जेक्ट, ठीक है. तो सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज़ गेटिंग स्टार्टेड. अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है, अभी भी यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, कुछ मिरेकल का वेट कर रहे हो या कुछ और वेट कर रहे हो, तो डोंट वेट, ठीक है. जस्ट बिलीव ऑन डूइंग, ठीक है. आप हमेशा करने पे विश्वास करिए. लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं. Yesterday I told you so many things in the photosynthesis, then I told you the function of the stomata, and then I ask you one question: when we apply the Vaseline on the leaf of the leaf of the plant, then what will happen? Actually, when we apply the Vaseline on the leaf of the plant, then it will block the stomata pore. ये stomata pore को क्या कर देगा? Block कर देगा. And when it will get blocked, there will be no exchange of gases, and if there will be no exchange of gases, the plant will die. और प्लांट की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी. क्लियर? दिस विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. 1 or 2 स्टूडेंट कमेंटेड इन द कमेंट बॉक्स, सो दे वर राइट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर? लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फिनिश, ठीक है. आप विद द फोटोसिंथेसिस आई हैव फिनिश्ड व्हाट? फोटोसिंथेसिस. द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फिनिश्ड नाउ. Now see the heterotrophic nutrition. In biology is very easy. Wherever you are having hetero word, hetero means other, different. Clear? Wherever you are having whatever heterotrophic, whatever hetero जाएगा, so many terms you will get to know in this class 10th. So wherever you are having hetero word, that means different. The organism depend on the other organism, like as all the living organism depend directly or indirectly on the plant. Now you can say that sir हम तो पिज़्ज़ा खाते हैं, ठीक है, हम प्लांट पे कहाँ डिपेंडेंट है. बट इफ़ यू गो थ्रू द इंग्रेडिएंट ऑफ पिज़्ज़ा, देन इट ऑल द इंग्रेडिएंट ऑफ द पिज़्ज़ा इज़ कमिंग फ्रॉम द प्लांट. नाउ वन स्टूडेंट विल से दैट सर आई एम नॉन वेजिटेरियन, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्लांट. नॉन वेजिटेरियन में यू आर ईटिंग एनिमल, एंड एनिमल्स आर ईटिंग व्हाट? एनिमल्स आर ईटिंग व्हाट? प्लांट. So indirectly or directly we are dependent on the other organism, and we just take the organic substances. We are not having that capability to change the inorganic into organic. We just take the organic substances and make them break down. और हमारी बॉडी में या हमारी बॉडी के बाहर उसको हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं. एंड दिस इज नोन एज व्हाट? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. क्लियर? तो देर आर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दोज फॉल इन दिस कैटेगरी, एंड दे शो डिफरेंट मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ अ ब्रॉड टॉपिक. ये ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है, ब्रॉड कैटेगरी है. इन दिस कैटेगरी अ लॉट ऑफ वेरिएंट ऑर्गेनिज्म विल बी देयर. उसमें वेरिएशन मिलेगा आपको. जैसे
हैव यू लिसन अबाउट द पैरासाइट्स? पैरासाइट्स जानते ही होंगे, ठीक है। सो मेनी पैरासाइट्स यू नो, आप उनके नाम भी जानते हो, पैरासाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। सम पैरासाइट्स जस्ट टेक द फूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के सरफेस से लेते हैं, जिनको हम एक्टो बोलते हैं, एक्टो पैरासाइट। अभी मैंने बोला ना बायोलॉजी बहुत इजी है। एक्टो मतलब होता है बाहर की तरफ, लेयर, सरफेस। एक्टो मतलब सरफेस, जहाँ पे भी अब एक्टो वर्ड आ जाए उसका मतलब जान लो सरफेस से है, और जहाँ पे भी एंडो वर्ड आ जाए उसका मतलब इनसाइड द बॉडी से है। क्लियर है? तो एक्टो पैरासाइट मतलब द पैरासाइट्स दोज ऑर्गेनिज्म दोज टेक द फूड फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। अब आपने टिक्स को सुना होगा, लीच सुना होगा, लीच स्किन से अटैच हो जाता है तो ब्लड को सक करता है, तो है क्या वो पैरासाइट है। मॉस्किटोज़ को सुना होगा, मॉस्किटो भी किस कैटेगरी में आ रहा है? पैरासाइट की कैटेगरी में आ रहा है। और कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? एक्टो पैरासाइट में आ रहा है। क्लियर है? नाउ दे डोंट टेक द होल फूड, मतलब जो भी फूड उनको मिला है वो पूरा फूड एक साथ नहीं ले सकते, मतलब पूरे फूड को इनटेक नहीं कर सकते। जैसे अगर लीच अगर किसी की स्किन से अटैच हो गया तो ऐसा है नहीं कि सारा ब्लड वो सक कर लेगा, नहीं, ठीक है। अगर कोई टिक्स है वो किसी की स्किन से अटैच हो गया तो इसका मतलब वो सारा ब्लड इनटेक नहीं करेगा। तो वट एवर पैरासाइट्स आर देयर दोज टेक द फूड पार्शियली, वो फूड को पार्शियली लेते हैं। और हमेशा याद रखना पैरासाइट्स हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके लिए क्या बुलाते हैं हम? होस्ट, ठीक है, होस्ट होते हैं वो। आपने सुना होगा हम एक पार्टी होस्ट कर रहे हैं, मतलब उस जिसमें सब लोग आते हैं और खाते हैं, मतलब हमारी बॉडी या किसी पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट की बॉडी पैरासाइट के लिए क्या है? होस्ट है, और होस्ट उसको फेवरेबल फूड प्रोवाइड कराता है। क्लियर है? हर एक पैरासाइट के लिए होस्ट स्पेसिफिक होता है, ज़रूरी नहीं कि एक कोई भी पैरासाइट हो तो किसी की होस्ट पे जाए, नहीं, वो स्पेसिफिक होता है, उसी होस्ट से वो फूड को इनटेक करेगा। क्लियर है? प्लांट में भी पैरासाइट, प्लांट भी पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। द प्लांट दो सो मेनी प्लांट्स आर देयर दोज कैन नॉट प्रिपेयर द फूड, फोटोसिंथेसिस नहीं शो करते, तो दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे आपने सुना होगा पिचर प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या कर रहा है? वैसे तो वो फोटोसिंथेसिस भी शो करता है, लेकिन उसकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि वो पैरासाइट मतलब वो क्या कर रहा है? ऑर्गेनिज्म को, इंसेक्ट्स को क्या कर रहा है? इनगल्फ कर रहा है, मतलब वो खा ले रहा है। क्लियर है? तो वो भी क्या है? किसी ऑर्गेनिज्म को वो भी खा रहा है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस वहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कुछ प्लांट भी क्या हो सकते हैं? पैरासाइट हो सकते हैं, लेकिन इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होगा उसको हम यहाँ पे इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो वो जैसे हम खाना खाते हैं एकदम वैसे ही वो भी इंसेक्ट्स को क्या कर रहा है? खा रहा है, ठीक है। तो वो प्रीडेटर में आ जाएगा। जो ऐसे प्लांट किस कैटेगरी में आ जाते हैं? प्रीडेटर कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। और उनके लिए जो इंसेक्ट्स है वो किसकी तरह है? प्रे की तरह है। नाउ देयर इज़ वन एग्जांपल, कस्कुटा। कस्कुटा का एक एग्जांपल है विच टेक द फूड फ्रॉम द प्लांट, वो प्लांट पैरासाइट है। जैसे आप लोग को यही पता होगा कि एनिमल ही पैरासाइट्स होते हैं, नहीं, प्लांट में आल्सो भी पैरासाइट, प्लांट भी पैरासाइट हो सकते हैं। एंड दीज पैरासाइट्स मे और मे नॉट कॉज डिजीज़, ऐसा भी हो सकता है। जैसे सो मेनी बैक्टीरिया इंटर इन आवर बॉडी बाई वाटर, थ्रू द फूड, एंड दे जस्ट गेट द फूड इनसाइड आवर बॉडी, एंड दे आल्सो डू हार्म, दे आल्सो कॉज हार्म इन आवर बॉडी, वो हमारी बॉडी को हार्म भी पहुँचाते हैं, डिजीज़ भी करते हैं। समझ में आया? तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो आइडियल पैरासाइट होगा दैट विल नॉट हार्म द बॉडी, वो बॉडी को हार्म नहीं पहुँचाएगा। तो दिस इज़ अबाउट द पैरासाइट। इन द नेक्स्ट slide I have just given you a slide which is showing the कस्कुटा। अब इसमें देखो ये जो दे रहे हैं ये सब कस्कुटा है, एंड कस्कुटा डोंट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इट जस्ट डिपेंड ऑन द अदर प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन। तो ये क्या हो गया? प्लांट पैरासाइट हो गया। समझ में आया? तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पैरासाइट। क्लियर? पैरासाइट क्लियर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट मोड ऑफ द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दैट इज सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। देखो पैरासाइट में फंजाई भी आ जाएंगे। आई थिंक मैंने यहाँ पे एग्जांपल में फंजाई नहीं लिखा है, यू कैन राइट डाउन द फंजाई। फ्यू फंजाई आर पैरासाइट्स टू, पैरासाइट्स भी होते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, सेप्रोट्रॉप्स। अब देखो सेप्रोट्रॉप्स भी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होंगे, तो पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप्स में डिफरेंट क्या है? सेप्रोट्रॉप्स मोस्टली डिपेंड ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, डेड एंड डिकेइंग पार्ट। को जरूरी नहीं को ऑर्गेनिज्म ही हो, कोई डेड पार्ट भी हो सकता है। जैसे ब्रेड है, तो ब्रेड क्या है? डिकेइंग पार्ट है। ब्रेड अभी अगर आप ब्रेड लेके आते हो उसको फ्रिज में रखते हो तो ब्रेड पे लिखा रहता है कि मतलब जो कितने टाइम तक आप उसको यूज़ कर सकते हो, 2 से 3 दिन, क्योंकि 2 से 3 दिन के बाद उसमें फंगस लगने लगते हैं। यू हैव सीन, आपने देखा भी होगा, ठीक है। ये मैंने स्लाइड भी लगा दी है, देखो ये। तो
सॉरी यहाँ गलती से पैरासाइट्स लिखे हैं, ये सेप्रोट्रॉप्स हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना बाई माई मिस्टेक, ठीक है। तो ये क्या है, सेप्रोट्रॉप्स है। अब देखो ब्रेड यहाँ पे क्या है, डेड डिके पार्ट है, मतलब डिके वाला पार्ट है जो सड़ रहा है, ठीक है। अब इस पर देखो ये ऐसे आपने तो पक्का कंफर्म देखा होगा, ये यही क्या है, फंजाई है। तो फंजाई क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दे आर डिपेंडेंट ऑन डिकेइंग पार्ट पे डिपेंड है, एंड दे आर डिपेंड फॉर द ऑर्गेनिक मैटर। वो ब्रेड से क्या ले रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर ले रहे हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो सेप्रोट्रॉप्स हैं वो फूड को ना बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं और फूड को अपनी बॉडी में ले जाके डाइजेस्ट करते हैं, बट जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो केमिकल सेक्रीट करके, एंजाइम सेक्रीट करके, दे डाइजेस्ट द फूड आउटसाइड द बॉडी, नॉट इनसाइड द बॉडी। वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट ना करके बाहर से ही डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ द फूड लेते हैं। समझ में आया, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रेड मोल्ड और मशरूम। जहाँ पे भी मोल्ड आ जाए उसका मतलब ये होता है फंगस। कोई भी अगर मोल्ड होगा तो उसका मतलब क्या होगा, वो फंगस होगा। मशरूम आप जानते ही हो। यहाँ पे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जैसे पैरासाइट्स में फंजाई भी हो सकते हैं, ऐसे सेप्रोट्रॉप्स में और क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा काउडंग, है ना, कंफर्म सुना होगा, काउडंग में बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया मिथेनोजन कैटेगरी के होते हैं और वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसीलिए काउडंग जो होता है उससे एक गैस बन सकती है बायो, जिसको गोबर गैस के नाम से जानते हैं। तो वो गोबर गैस बनाने के लिए मिथेनोजन बैक्टीरियम ही होते हैं। अब बताओ काउडंग क्या है, काउडंग तो डेड एंड डिकेइंग पार्ट तो है, फीकल मैटर ही तो है, उस पर फीड करते हैं ना, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, जो फीकल मैटर पे भी फीड करते हैं, ठीक है, और उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्लियर है। तो इस तरह से दो कैटेगरी क्लियर हो गई, एक तो पहला क्लियर हो गया पैरासाइट्स और दूसरे सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। डिफरेंस भी क्लियर हो गया, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक डेड एंड डिकेइंग पार्ट पे डिपेंडेंट है और दूसरा किस पे डिपेंडेंट है, ऑन द लिविंग पार्ट, और दूसरा लिविंग पार्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द होलोजोइक। विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वी आर गोइंग टू स्टडी, होलोजोइक। अब देखो होलोजोइक का मतलब वो क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म टेक द एंटायर फूड। अब जैसे एंटायर फूड की बात आती है तो स्टूडेंट सोचते हैं कि इसका मतलब है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके सामने पूरा खाना आया, थाली आ गई है, थाली में खाना लगा हुआ तो पूरी थाली खा जाना, इसका ये सेंस नहीं निकल रहा है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो पैरासाइट्स होते हैं, जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, वो फूड को पार्शियली लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके अपने बॉडी में लेते रहते हैं। लेकिन जो होलोजोइक होते हैं वो एंटायर फूड लेने की कैपेबिलिटी को रखता है। जैसे मान लो अमीबा है, तो अमीबा के सामने एलिफेंट तो आएगा नहीं कि भैया एलिफेंट आ गया, अमीबा लो खा लो। अमीबा के अकॉर्डिंग अमीबा के लिए अमीबा के ही साइज़ का फूड होगा। जैसे सपोज़ ये फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल है। अब इस फूड को अमीबा ये नहीं करेगा कि थोड़ा सा फूड ले लेगा, इससे थोड़ा नहीं, इस पूरे फूड को इनटेक कर लेगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि पूरे फूड को इनटेक कर ले रहा है। जो भी फूड उसके लिए जिसको लेने के लिए वो कैपेबल है, वो उस फूड को थोड़ा थोड़ा करके नहीं इनटेक कर रहा है। इसका मतलब ये है। तो दैट्स वाई द ऑर्गेनिज्म दोज टेक द ऑर्गेनिक मैटर एंड दे जस्ट टेक द एंटायर फूड। वो एंटायर फूड ले सकते हैं एंड दे डाइजेस्ट द फूड इनसाइड द बॉडी, और वो फूड को अपने बॉडी में ले जाके डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होती है, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ठीक है, कि एंटायर फूड का मतलब क्या हुआ। तो एंटायर फूड का मतलब क्लियर हो गया। अब अगर एंटायर फूड से भी नहीं क्लियर हो तो देखो 5 स्टेप लिख रखे हैं मैंने। इन द होलोजोइक न्यूट्रिशन देयर आर 5 स्टेप। फर्स्ट वन इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। ये आपने कुछ जूनियर क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि ये 5 स्टेप होते हैं। इंजेशन मतलब फूड को इंटेक करना, उसको डाइजेस्ट करना विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, दोज हेल्प इन द डाइजेशन। बिना उसके हम मेटाबॉलिज्म या डाइजेशन मतलब वी कैन नॉट थिंक अबाउट द डाइजेशन विदाउट द एंजाइम्स। एब्जॉर्प्शन, पता है एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड होगा उसी को क्या करेंगे हम, एब्जॉर्ब करेंगे, हमारी बॉडी उसको करेगी, ठीक है। फिर उसका एसिमिलेट करेगी, उसका यूटिलाइजेशन करेगी, उसको स्टोर करेगी, उसको हम क्या बुलाते हैं, एसिमिलेशन बुलाते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, ठीक है, जो भी एक्सेस मटेरियल होगा, जो एक्सेस अमाउंट में है, उसको क्या करेगी बॉडी, बाहर फेंक देगी, मतलब बाहर की तरफ शिफ्ट करेगी, और उसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, ईजेशन। तो ये पांचों प्रोसेस अभी तक ना आपको पैरासाइट्स में देखने को मिला, ना ही सेप्रोट्रॉप्स में देखने को मिला। दीज 5 प्रोसेस आर एग्जिबिटेड बाय द विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दो शो होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर है। तो इस तरह से होलोजोइक न्यूट्रिशन क्लियर हो गया कि क्या होता है,
ठीक है। नाउ कम टू द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे आपके बुक में एनसीईआरटी में अमीबा और पैरामीशियम के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि बीइंग अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हाउ डू दे टेक द फूड। वी कैन नॉट सी द अमीबा विदाउट अनएडेड आई, मतलब हम अगर हमारे पास कोई माइक्रोस्कोप ना हो, कोई इंस्ट्रूमेंट ना हो, तो वी कैन नॉट सी द अमीबा, लेकिन फिर भी अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। लेट्स सी, अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पहली चीज़ क्लियर कर लो। दूसरा, अमीबा का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, ठीक है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। जैसे आपके पास पॉलीथिन है, तो पॉलीथिन में अगर आप फिंगर डालो तो पॉलीथिन का शेप कुछ भी बना सकते हो, बैलून का शेप कुछ भी बना सकते हो फिंगर अंदर डाल के, ठीक है। सेम एज अमीबा का भी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। ये अपने शेप को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, ठीक है। अब देखो शेप को चेंज यहाँ पे कैसे कर रहा है और ये कैसे हेल्प कर रहा है फूड के इनटेक करने में। देखो अमीबा है और ये फूड पार्टिकल है। अब अमीबा विल फॉर्म 2 फीट लाइक स्ट्रक्चर। एक्चुअली में फीट तो होते नहीं, ठीक है, एक्चुअल में अमीबा के पास फीट तो होते नहीं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कहाँ से फीट लेके आएगा। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके पास फीट नहीं होते, इसीलिए वो फीट बनाता है। मतलब ये फीट एक्चुअल में नहीं है, इसलिए यहाँ पे नाम जुड़ गया स्यूडो। बायोलॉजी में जहाँ पे भी स्यूडो वर्ड आ जाए, टी साइलेंट है यहाँ पे, उसका मतलब होता है फॉल्स। व्हाट डज द स्यूडो साउंड, स्यूडो का क्या साउंड आता है कि स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स। और पोडिया मतलब होता है फीट, ठीक है, पोडिया मतलब क्या हो गया, फीट हो गया, तो फॉल्स फीट बुलाते हैं। स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट। अब देखो फॉल्स फीट बना के इसने एक देखो सराउंडिंग बना ली फूड के चारों तरफ, ठीक है, फूड के एक तरफ से, और ये फूड को इस तरह से जो फूड होगा वो डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो फूड का क्या कर रहा है, डिफ्यूज़न हो रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। ये देखो पहले तो आगे की तरफ बढ़ा था, फिर पूरी तरह से फूड को सराउंड कर लिया, और इस तरह से फूड का क्या हो गया, डिफ्यूज़न हो गया। तो ये फूड को क्या कर ले रहा है, इनगल्फ कर ले रहा है। इनगल्फ का मतलब हिंदी में मतलब होता है निगल लेना, फूड को पूरी तरह से इनटेक कर लिया। तो ये कौन सा प्रोसेस शो कर रहा है, इंजेशन। आपने पहला स्टेप यहाँ पे देख लिया कि हाउ द अमीबा शो इंजेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे इंजेशन क्लियर हो गया, पहला जो स्टेप था ये क्लियर हो गया, ठीक है। और इंजेशन कैसे अमीबा इज़ एबल टू शो द इंजेशन बाय द हेल्प ऑफ द सूडोपोडिया की हेल्प से इंजेक्शन कर रहा है। और अंदर जाके जब फूड बन रहा है तो फूड वैक्यूल बना ले रहा है। देखो फूड क्या बना रहा है, वैक्यूल, फूड जो है वैक्यूल में जाके स्टोर हो जा रहा है। तो इस तरह से फूड का क्या हो गया, इनटेक हो गया। अब देखो अमीबा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बट इट विल हैव एंजाइम्स। अमीबा में क्या प्रेजेंट होंगे, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। दीज एंजाइम विल स्टार्ट डाइजेस्टिंग द फूड, इस फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। डाइजेस्ट करने के बाद सेल्स में जो ऑर्गेनल हैं उस फूड को इनटेक कर लेंगे, मतलब एब्जॉर्प्शन करेंगे, उसको एसिमिलेट करेंगे। एसिमिलेट करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है अमीबा में, ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, जैसे अमीबा है, ठीक है, इसने वेस्ट मटेरियल, इसमें सपोज ये वेस्ट मटेरियल ऐसे से कलेक्ट हो रहा है। अब ये वेस्ट मटेरियल जब कलेक्ट हो जाएगा तो ये भी एक वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा, और इस तरह से अमीबा आगे की तरफ बढ़ेगा और वैक्यूल पीछे की तरफ आ जाएगा। फिर अमीबा आगे बढ़ेगा और ये वैक्यूल बाहर की तरफ जो भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको बाहर की तरफ रिलीज़ कर देगा। तो ये कौन सा प्रोसेस है, इंजेशन है। तो इंजेशन शो कर दिया, और क्या शो किया, डाइजेशन, ठीक है, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, और तब क्या शो कर रहा है, इजेशन शो कर रहा है। समझ में आ गया। तो इन दिस वे द ऑर्गेनिज्म, द अमीबा इज बीइंग अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज शोइंग विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ये इसी प्रोसेस को 9th में भी आपने पढ़ रखा है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। या तो इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बुला सकते हैं, और या तो इस प्रोसेस को और एक नाम दे सकते हैं, दैट इज़ फैगोसाइटोसिस। वैसे फैगो मतलब होता है निगल जाना, ठीक है, फैगोसाइटोसिस, क्योंकि अमीबा फूड को क्या कर रहा है, इनगल्फ कर रहा है, निगल ले रहा है। समझ में आया। तो इस तरह से अमीबा में न्यूट्रिशन क्लियर हो गया। नाउ पैरामीशियम, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं, ठीक है, जैसे पैरामीशियम है, स्लाइड मैंने बनाई थी यहाँ पे, आई थिंक लगाई नहीं। पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर है वो फूड की तरह होता है, एकदम आपके स्लीपर की तरह होता है, और इसमें ऐसे ऐसे सिलिया प्रेजेंट होते हैं। तो पैरामीशियम का जो शेप है वो फिक्स्ड है, मतलब वो डेफिनेट है, अमीबा की तरह चेंज नहीं हो रहा है। अब ये जो सिलिया हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं सिलिया, इसी के थ्रू जो है जो फूड पार्टिकल है वो अंदर की तरफ डिफ्यूज़ कर जाएगा, और ये जो ओरल ग्रूव होता है, ओरल ग्रूव, इसी की हेल्प से फूड जो है बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। समझ में आया। तो पैरामीशियम में भी फूड का डिफ्यूज़न हो रहा है, लेकिन किसके थ्रू हो रहा है, ओरल ग्रूव के थ्रू हो रहा है। वहाँ पे एक पार्ट होता है जिसका नाम क्या है, ओरल
ग्रूव, और ओरल ग्रूव में एंटर कैसे कर रहा है फूड, विद द हेल्प ऑफ द सिलिया, किसकी हेल्प से, सिलिया की हेल्प से, समझ में आया। तो इस तरह से पैरामीशियम में न्यूट्रिशन तो हो रहा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन तो है, लेकिन उसके पास डिफरेंट पार्ट है, अदर पार्ट है, दैट इज सिलिया, ठीक है। और अमीबा के पास क्या है, सूडोपोडिया है, क्लियर है। तो इस तरह से होलोजोइक न्यूट्रिशन क्लियर हो गया ऑर्गेनिज्म में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी डिफ्यूज़न के थ्रू प्रोसेस को शो कर सकते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में फूड का इंटेक जो होता है वो डिफ्यूज़न से नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर है, ठीक है। अमीबा की बॉडी यूनिसेलुलर है, उसमें तो फूड जो है वो डिफ्यूज़न के थ्रू एंटर कर जाएगा, वो डिफ्यूज़न से प्रोसेस को शो कर लेगा। लेकिन हमारी बॉडी, क्योंकि कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, तो उन सारे सेल्स में फूड का जो इंटेक होगा वो डिफ्यूज़न प्रोसेस से नहीं हो सकता, क्लियर है। तो इस तरह से इसीलिए जो डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, डिफरेंट पार्ट्स होंगे, ठीक है भाई। अगर एक किसी का एक कमरा है तो उसी एक कमरे में ही सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, उसमें वॉशरूम भी होगा, उसमें किचन भी होगा, उसमें जितनी भी चीज़ें सब हैं। तो ऐसे बेचारा अमीबा भी है, अमीबा भी यूनिसेलुलर है, लेकिन अगर किसी का घर बड़ा है तो उसके लिए उसके यहाँ वॉशरूम भी अलग होगा, किचन भी अलग है, पूजा रूम भी अलग है, ड्राइंग रूम भी अलग है, ठीक है, ड्रेसिंग रूम अलग है। तो इस तरह से रूम अलग अलग है। तो हमारी भी बॉडी एकदम जान लो कॉम्प्लेक्स की तरह है, ठीक है, किसी एक कॉम्प्लेक्स की तरह है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट सेल्स हैं, और डिफरेंट सेल्स ने टिश्यू और ऑर्गन बना रखे हैं। तो इसीलिए हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम होता है, तुम्हें पता है ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है। और अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ठीक है। जैसे डाइजेशन के लिए कौन सा सिस्टम होगा, दैट विल बी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। अब एक बात और क्लियर कर लो कि डाइजेशन क्या होता है। देखो डाइजेशन मतलब स्टूडेंट को पता होगा केवल ब्रेक डाउन, कि इसमें केवल ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ब्रेक डाउन, किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन इनटू व्हाट, इनटू व्हाट, किसका किस में। तो जो हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, हम क्या करते हैं, फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड को हम किस में चेंज करते हैं, सिंपल में। सिंपल एंड सॉल्युबल, सिंपल भी होगा और क्या होगा, सॉल्युबल भी होगा। क्योंकि अगर ये फूड सिंपल और सॉल्युबल में चेंज नहीं होगा तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा सेल्स के थ्रू। सेल्स जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। दैट्स वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन की नीड क्या है, बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए उसको सिंपल और सॉल्युबल में चेंज कर देते हैं, और इसी को हम क्या बुलाते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, डाइजेशन। फॉर द डाइजेशन वी आर हैविंग व्हाट, हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक तो एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब जहाँ से फूड पास होगा, जैसे आपने फूड खाया, ठीक है, सबसे पहले माउथ में गया, फिर अदर पार्ट में स्टमक में जाता है, फिर आगे जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल इज एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड। वो किसके साथ एसोसिएटेड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी उसके साथ एसोसिएटेड है। दो एंजाइम सेक्रीट करती हैं, एंड दोज एंजाइम वर्क ऑन द, मतलब दे जस्ट शो द रिएक्शन ऑन द फूड, और वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन में। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको फील करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है भाई। अमीबा को मैं ये नहीं दे सकता ना कि अमीबा को फील करके पढ़ सकते हो, अमीबा को देख ही नहीं सकते, फील कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन इन वट एवर प्रोसेस यू आर गोइंग टू स्टडी इन आवर बॉडी, जैसे आप डाइजेशन पढ़ रहे हो, रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हो, एक्सक्रीशन पढ़ रहे हो, इनको अपनी बॉडी में आप फील करके पढ़ सकते हो। जैसे डाइजेशन, आज आप अभी आप बैठे हो तो अगर आपके पास बिस्किट है तो आप बिस्किट खा के देखो। बिस्किट जब खाते हो तो क्या होता है, उसको आप पहले चिंग करते हो, चिंग किसकी हेल्प से करते हो, टीथ की हेल्प से करते हो। कोई भी ड्राई फूड अपने माउथ में लेके जाते हो, दैट बिकम वेट, वो वेट हो जाता है। क्यों वेट हो जाता है, कोई भी फूड आप देखते हो फिर भी आपके माउथ वेट हो जाता है, आपके माउथ में सलाइवा आ जाती है, जिसको हम कहते हैं कि अरे यार ये तो बड़ा भूख लग रही है हमें, ठीक है। तो सलाइवा सेक्रीशन हो जाता है, ठीक है। और उसी सलाइवा की वजह से हमारा फूड जो होता है वो वेट हो जाता है। और अगर फूड वेट ना हो तो फूड को हम निगल नहीं सकते, मतलब स्वेलो नहीं कर सकते ईजिली। आपने मतलब ये बात आई थिंक ऑब्जर्व की होगी, व्हेन यू हैव ईटन पंजीरी, जब आपने बहुत ढेर सारी पंजीरी खा लेते हैं तो आपको काफ़ी टाइम लगता है उस पंजीरी को स्वेलो करने में, ठीक है। इसका मतलब है बिना फूड वेट हुए स्वेलो नहीं हो सकता। तो ये एक ऐसा पार्ट है जो आप फील करके पढ़ सकते हो। आपने च्युइंगिंग किया, च्युइंगिंग कहाँ पे किया, माउथ में किया। जब च्युइंगिंग करते हो तो फूड पूरी तरह से वेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला जाता है कि फूड को खूब च्युइंग करके खाना चाहिए, जिससे एकदम पेस्टल फॉर्म में हो जाए और हमारे स्टमक और अदर डाइजेस्टिव पार्ट के लिए वो ईजी हो जाए उसको डाइजेस्ट करना, ठीक है।
तो उसके बाद आप उसको स्वेलो करते हो। स्वेलो करने पे आप स्वेलो का मतलब क्या हो गया, घूटना, ठीक है। जब आप उसको स्वेलो करते हो तो आप अगर फील करोगे तो आपको लगेगा कि कुछ ऐसा फूड है जो आपकी चेस्ट कैविटी को क्रॉस करके जा रहा है, मतलब आपके गले से होके जा रहा है, ठीक है। तो वो ईसोफेगस है, जिस पार्ट के थ्रू फूड पास हो रहा है वो है क्या, वो ईसोफेगस है। फिर जब खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हो या खा लेते हो तो आपको लगता है आपका जो मिडिल एब्डोमिनल पोर्शन है, जो बीच वाला जो पार्ट है बॉडी का, वो ऐसा लगता है जैसे फूल आ गया, उसमें कुछ चेंज आया। वो चेंज क्यों आया, क्योंकि स्टमक में फूड जाके क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो समझ में आया। तो इस टॉपिक को एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको फील करके पढ़ेंगे, और अगर आप फील करके पढ़ोगे तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्योंकि मैं एक टॉपिक जब स्टार्ट करूँगा टुमारो आई विल स्टार्ट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, देन आई विल फिनिश दैट पार्ट। उस पार्ट को मैं ख़त्म करके तभी उस लेक्चर को ख़त्म करूँगा, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट करूँगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई गेव यू इंट्रोडक्शन, मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। और आज जो भी आप खाओगे तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को फील करके ही खाओगे कि देखो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ठीक है। टुमारो विल डिस्कस सो मेनी थिंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग है। एन्जॉय द सब्जेक्ट, डोंट रोट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज़ नॉट मेंट फॉर द रोटिंग, रटने के लिए थोड़ा ना है, ठीक है। रटने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट रटने के लिए नहीं है, समझने के लिए। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट समझोगे देन इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ईजी हो जाएगा तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कंफर्म है आपको उसमें फ्यूचर मेंटेन करने का एक ड्रीम आ जाएगा कि हम इसमें फ्यूचर अपना देख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो आई एम एंडिंग दिस सेशन विद दिस पार्ट, वी विल मीट टुमारो, एंड अगेन आई एम सेइंग if you are liking the session, liking my videos, please press the like button because likes are very less. Subscribe the channel and please share it अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, अपने और भी जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप इसको शेयर करो, ताकि इसको मैक्सिमम आप शेयर करोगे तो उसका बेनिफिट मिले पड़ेगा। अगर आप लाइक करोगे तो मुझे लगेगा हाँ मेरी जो हार्ड वर्क है दैट इज़ फ्रूटफुल, वो फ्रूटफुल हो रही है और बच्चों को समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ लाइक द सेशन। क्लियर, आई एम एंडिंग दिस सेशन। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, स्टे एट योर होम, stay safe,